Hello my dear friends, this is Kumar Digvijay. As I told you that in our previous videos I finished up to your third week of June current affairs. So like I told you that मैं जून का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स हर एक हफ्ते का करंट अफेयर्स खत्म करने के बाद I will discuss some exclusive topics. Like here you can see this is all the important topics which I want to discuss in a more relevant way, in a detailed manner. So these are the some important topics what I choose from the third week June current affairs. So here you can see the entire content. After discussing this all the 5 important things or 6 important things, I will discuss some relevant questions what regarding with our third week of June current affairs. So here you can see the name of the important topics, like the first one is the draft electricity amendment bill, and the second one is your US Uyghur right bill. Then after global partnerships on artificial intelligence because India recently joined GPAI. उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है Indian Gas Exchange launched in ceremony. Then after NASA का जो गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट है, yesterday also in our previous video we discussed regarding the cooperation between India and Japan regarding the lunar space technology. उसके बाद हमारा जो आखिर में जो है why banning trade with China will hurt India more, मतलब अभी जो हमारे गलवान वैली पे जो इशू हुआ, जो तकरीबन 20 के हिसाब से हमारे सोल्जर्स मरे गए, उसके बाद जो इशू जो टजल चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लॉट्स ऑफ वीडियोस, लॉट्स ऑफ पोस्ट्स आर कमिंग इन आवर ट्विटर, फेसबुक दैट पीपल आर सेइंग दैट वी शुड गो फॉर ए बैन विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स which are imported from China. So these are some important topics what I choose from the current affairs of June 3rd week. Today or now you can say that I am going to discuss. After discussing all these 6 important topics, I will discuss some important relevant questions for this week current affairs. So now we are going to see what is the important issue with respect to the draft electricity amendment bill 2020. So if you will see the first, now I am going to show you the slide 1. So here you can see 1 minute. So it is the issue now, draft इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020. अभी ये फिलहाल न्यूज में है क्यों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है दीदी का स्टेट, ममता दीदी का वेस्ट बंगाल, पंजाब, पुडुचेरी, केरला, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. So these are some states which denied to follow this particular bill named as electricity amendment bill. इसके बारे में जानने से पहले we should know what are the exact things, what are the provisions added by the government of India or you can say the Modi administration, because यहाँ पे जो नाम लिखा गया है उसी से आप लोगों का पता चल रहा होगा. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है अमेंडमेंट. अमेंडमेंट का मतलब इट वाज नॉट एडेड इन द बिल ओरिजिनली. एक्चुअली अमेंडमेंट का मतलब ये है कुछ चेंजेस, कुछ रिफॉर्म्स. ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का है, एक्चुअली दिस बिल इज गोइंग टू बी अमेंड द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसी को ये अमेंड करने जा रहा है. तो अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 था क्या, इसमें कौन सा चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने जा रहा है, जिसके वजह से इट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020. So now we are going to see regarding the electricity amendment bill 2020. You can say what are the important information with respect to this particular bill. What I mentioned here, I already told you that it is going to change the Electricity Act 2003. Then it will increase the reliability, it will reduce the risk and it will failing of PPA. PPA का मतलब क्या है, I will tell you after going to the next slide. So you can see here PPA issue. PPA का मतलब क्या है, PPA का मतलब यहाँ पे यही है. देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या मतलब, किसमें ट्रांसपेरेंसी, किसमें रिलायबिलिटी की बात कर रहा है. आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग माय डियर फ्रेंड्स द पावर सेक्टर. देखो यहाँ पे एक जन पावर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, और दूसरा कोई इंसान पावर को खरीदता है उसको बोला जाता है यहाँ पे परचेजर.
जो परचेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेजर। सो इट इज ए thing or it is a movie between which is happening between these two person or two people. One is the producer which is used to produce the electricity and another one is the purchaser which is used to buy the electricity from the producer, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्कॉम्स। आप लोगों को पता होगा, बहुत बार हम लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा है ये वर्ड। दिस पीपुल आर नोन एज व्हाट, डिस्कॉम्स। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने यहाँ पे जो स्टोरी बताया है, प्रोड्यूसर और द वाइटल रोल प्लेड बिटवीन दिस टू kind of people, one is the producer, another one is the purchaser, or you can say the purchaser is also known as what, discoms. So now I am going to tell you the entire story between these two people. अभी देखो ये चीज पूरा का पूरा चीज होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा गया है पीपीए इश्यूज का मतलब क्या है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वन who generates electricity. I told you recently, now regarding it is talks about the producer side and here, and who is looking to purchase, that means I am talking regarding the purchaser side. So it is a thing between the producer and the purchaser, sometimes broken or renegotiated by the discoms. यहाँ पे मैं जो discoms बोल रहा हूँ, तो फिर discoms कौन है यहाँ पे, this one is known as discoms। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया डिस्कॉम और भी कोई नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है, जो परचेस करता है, उसी को यहाँ पे बोला जाता है क्या, डिस्कॉम्स। कभी कभी क्या होता है, पकड़ लो, यहाँ पे रहा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, यहाँ पे रहा आपका जो उसे खरीदता है, आप लोग ऐसे बोल सकते हो परचेजर या डिस्कॉम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो डीलिंग होता है, ये जो परचेजर साइड या डिस्कॉम साइड होता है, ये क्या करता है, उस बिल को या वो उस एग्रीमेंट से निकल जाता है या उस एग्रीमेंट को वो रीनेगोशिएट करता है। रीनेगोशिएट वो ब्रोक करने का मतलब क्या है, तो फिर ये लोग जो पैसा मार्केट से उठा के या बैंक से लेके इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहे हैं, अगर इन लोगों का इनके साथ किया गया एग्रीमेंट ब्रेक हो जाएगा, तो फिर इनका पैसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनपीए में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको और क्या कहा जाता है, bad loans. You can see here, I think my dear friends, you know regarding the information regarding NPA or bad loans. I also discussed regarding these things in, I think in first or second week current affairs of June. NPA का मतलब यही है, अगर कोई भी बैंक से लिया गया लोन 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर उसको उसका पूरा का पूरा जो इंस्टॉलमेंट है ठीक तरह से दिया नहीं गया, तो उसी पैसे को क्या कहा जाता है, क्या, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या इसको क्या बोला जाता है, बैड लोन। तो अभी क्या हुआ, अगर ये जो परचेजर और जो डिस्कम्स वाले लोग हैं, इफ दे विल ब्रेक द एग्रीमेंट और दे विल रीनेगोशिएट द एग्रीमेंट, देन ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ए बर्डन फॉर द पीपल लाइक जनरेटर। देन अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल क्या किया है, दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हाट आई टोल्ड यू विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अभी इसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस क्या लाया है, गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पे मैंने लिखा है की चेंजेस क्या है, पेनल्टीज फॉर द फेल्यूर टू ऑनर पीपीए। ओके, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, पीपीए का फुल फॉर्म क्या है, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट। अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी खरीदने वाला या डिस्कॉम साइड से कोई भी ब्रेक हुआ एग्रीमेंट, or otherwise if they will renegotiate and the burden will come on the shoulder of the side of generator, then the government is going to penalize that particular discom। ऐसे भी बताया गया है कि एक दिन के लिए 10 मिलियन तक का, इंडियन करेंसी में अगर आप लोग देखोगे 10 मिलियन तक मतलब 100 लाख तक का यहाँ पे पेनाल्टी दिया गया है। सो दिस इज द मेजर चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट व्हिच केम इन द ईयर ऑफ 2003 and with respect to electricity amendment bill, the major issue is if the discom side is going to renegotiate or break the agreement, they are going to be penalized by the government of India according to the electricity amendment bill 2020।
So my dear friends, I hope that you are getting a clear knowledge with respect to the electricity amendment bill. अभी यहाँ पे फिलहाल चेंजेस क्या हुआ है, और एक चेंजेस गवर्नमेंट लाया है कि ये जो सारा का सारा काम ये जो चल रहा है यहाँ पे, अभी जो हमारे देखो हम लोग जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पैसा देते हैं, इट इज ए सब्सिडाइज्ड प्राइस। अभी चाहे एक नॉर्मल सा किसान हो या हमारे सोसाइटी का कोई भी लोग हो, समाज में रहने वाला हर कोई इंसान जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको एक सब्सिडाइज प्राइस में देता है। ठीक है, पकड़ लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चार्ज है 100 रुपए, बट वी द पीपुल वी डू नॉट पे द 100 रुपीज, वी पे अराउंड 80 to 85 rupees. What the government is going to do now with respect to this electricity amendment bill, they are going to reduce this particular subsidy from the side of the people. That means now we are going to pay this 100 rupees instead of the 80 to 85 rupees what we used to pay before. तो इसीलिए यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे ये जो सारे स्टेट आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लिखा गया है वेस्ट बंगाल, पंजाब, पुडुचेरी, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सब लोग और ये सारे स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा देन इट विल बी अ बर्डन ऑन द पीपल। आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मैंने मेंशन किया है, दिस वुड मीन पीपल वुड हैव टू पे ए ह्यूज सम टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस while receiving support through direct benefit transfer later. Then this would result in the defaults leading to the penalties and disconnection. लोगों में बहुत सारा मतलब असुविधाएं आएगा पिक्चर में। तो this is a discriminatory since the tariff can be tweaked according to the whims and fancies of the central government. तो देखो यहाँ पे ओवरऑल मैं यही बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल यहाँ पे दो चीजों को लेके आया है। पहला तो ये है, इफ फ्रॉम द साइड ऑफ डिस्कॉम they will renegotiate or if they will break the agreement, then according to this bill the purchaser side is going to be penalized with respect to a huge financial penalty. After that the government is going to reduce the subsidy amount what we used to pay before. So these are some normal information or these are some general information you should know regarding the electricity amendment bill 2020. Now we are going to see the next important current issues what is going on. So these are some information what I gave you here with respect to the electricity amendment bill 2020. So now we are going to see the next most important bonding chapter. I just mentioned it here, US Uyghur Right Bill. तो अभी कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प हैज साइंड लेजिस्लेशन कॉलिंग फॉर सैंक्शन ओवर द रिप्रेशन ऑफ द चाइनास उइगुर मुस्लिम्स। ठीक है, अगर आप लोग चाइना एक ओवरऑल ऐसे कंट्री अगर आप लोग देखोगे ऐसा बड़ा होके अगर चाइना, एक मिनट, इफ यू विल सी द एंटायर चाइना लाइक दिस, then here is your a province known as Xinjiang province. In this particular province, around according to the data, around 10 lakh Muslims are tortured by the China government. But according to the government of China, they are saying that we are re-educating the Uyghur Muslims. It is not a type of torture. My dear friends, in our last week or in our previous videos, I told you regarding the United States. You can see here, just give me 1 minute. You can see here सीनेट। अभी देखो जैसे हमारे देश में होता है ना पार्लियामेंट, अमेरिका में वैसे ही बोला जाता है क्या, कांग्रेस। हमारे देश में फिलहाल कांग्रेस इज द नेशनल पार्टी, बट लाइक आवर कंट्री वी यूज्ड टू कॉल द पार्लियामेंट, इन अमेरिका इट इज नोन एज कांग्रेस। जैसे कि हमारा अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है, उसी तरह अमेरिका के अपर हाउस को क्या बोला जाता है, सीनेट। यू कैन सी हियर सीनेट पासेस उइगुर ह्यूमन राइट्स बिल इन द लाटेस्ट शॉट एट चाइना। मतलब जो अमेरिका का जो
upper house senate, they passes a bill now which is on the table of Mr. President, that means Mr. Trump. We are going to see whether he is going to pass it or not. What they mention here, the US Senate gave unanimous consent to the legislation that would impose sanctions on Chinese officials. यहाँ पे एक बात उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको मैंने बोला था USCIRF, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसमें हमारे देश को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बताया गया था। आई ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स, काइंडली गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का मतलब यही है कि जितने भी देश को इसमें रखा जाएगा या रखा गया है, इंडिया इज ऑल्सो ए कंट्री व्हिच कम्स अंडर दिस CPC। अकॉर्डिंग टू USCIRF, in India the Muslims are tortured. You can say the bill of NRC, you can say the by scrapping the article 370. So these are some issues what I discussed before. So like this, here also America shows that China comes under the CPC category. You can see here also US Senate gave unanimous consent that I discussed here. So here you can see Trump's table में अभी मतलब the bill introduced by the Senate Marco Rubio, मतलब यही जो वहाँ पे सांसद हैं, would condemn the internment of more than 1 million Uyghurs। अभी मैंने बोला ना तकरीबन वहाँ पे 1 मिलियन का मतलब क्या है, 10 लाख, ठीक है। जो 10 लाख उइगुर मुस्लिम है, वहां पे बोला जा रहा है कि चाइना में उनको मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे बोला गया है, जो ग्लोबल टाइम्स का जो मतलब आर्टिकल है, ग्लोबल टाइम्स पूरा का पूरा मतलब चाइना के गवर्नमेंट के अंदर में है, तो उन्होंने क्या बोला है, उइगुर बिल डैमेजेस वर्स्ट इन डिकेड्स बायलैटरल टाइज, ट्रिगर्स काउंटर मेजर्स ऑन एंटी चाइना पॉलिटिशियंस। एक्सपर्ट ने बोला है, मतलब उन्होंने यही बात बोला है कि अमेरिका को उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। अपने देश में जो उनका अभी हालात है कोरोना को लेके, दे शुड फोकस मोर ऑन दैट। तो अभी आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे दिखाया है, यूएस sanctions China over purchase of S-400 air defense system Su-35 fighter jets from Russia। ओके, इसके पहले मैं आप लोगों को और एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं, जरा 1 मिनट रुकिए यहाँ पे, 1 मिनट। आई थिंक द स्लाइड इज मिस्ड हियर। सो मैंने आप लोगों को जो बोला था द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के बारे में, मैं उसके ऊपर एक बार मतलब फिर से आपको कुछ बोलना चाहता हूं। दैट कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में इंडिया के साथ साथ यहाँ पे चाइना है, सीरिया है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, सो लाइक दैट वियतनाम भी है, आपका म्यांमार भी है। आप लोगों को पता होगा दैट द रोहिंग्या मुस्लिम इशू इज जेनरेटेड फ्रॉम द रखीन स्टेट ऑफ म्यांमार। सो देयर आर लाइक 14 countries which comes under the CPC, countries of particular concern, according to the report given by the United States Commission on International Religious Freedom। तो अभी क्या हुआ, I think that you guys are getting a clear knowledge what I want to say exactly। So here you can see regarding this particular bill, तो मैंने आप लोगों को दिखाया ग्लोबल टाइम्स में जो एक्सपर्ट है चाइना का, उन्होंने यहाँ पे यही स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यूएस ने सैंक्शन लगाया है 3 देशों के ऊपर अकॉर्डिंग टू काटसा। If it is possible for me, I will bring a separate video with respect to काटसा। काटसा का मतलब एक ओवरऑल व्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे कि 1944 से लेके 1991 तक हमारे विश्व में कोल्ड वॉर चला था। एक वर्ल्ड was divided into 2 parts, one is the eastern world, one is the eastern world regulated by USSR, today's Russia, and another side western world was regulated by USA। ओके, काटसा का मतलब क्या है, अगर कोई भी देश रसिया से कोई भी सिस्टम या मिसाइल वगैरह या डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई भी सामान खरीदेगा, देन यूएसए का रिलेशन उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तो अप टू नाउ काटसा एक्ट कम्स अंडर 3 to 4 countries, one is नॉर्थ कोरिया। आप लोगों को पता होगा नॉर्थ कोरिया इज ए फ्रेंडली कंट्री ऑफ योर चाइना, देन आफ्टर ईरान, देन आफ्टर रसिया। So these are 3 important countries on which USA sanctioned the CAATSA Act. Now China also comes under this act. You can say here I mentioned a particular
एयर डिफेंस सिस्टम नेम्ड एज S-400। हमारे लिए अच्छा बात यही है कि कुछ 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले इंडिया ऑल्सो बॉट द S-400 एंटी डिफेंस सिस्टम फॉर रशिया, बट फॉर्चुनेटली काटसा एक्ट वाज नॉट पुट ऑन आवर कंट्री बाई यूएसए। बट ये सारा का सारा चीज जानने के बाद नाउ हमारा कान खड़े हो जाना चाहिए। वी शुड नो दैट इट मे बी गोइंग टू बी बिकम बैड इफ वी आर नॉट गोइंग टू गिव सीरियस कंसर्न टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस रिपोर्ट इंडेक्स। अभी हम लोगों को फिलहाल सीपीसी में डाल दिया गया है। अगर हम लोग मुसलमान लोगों के ऊपर आंकड़ी देखिए, यहाँ पे व्हाट एवर द थिंग्स आई एम टॉकिंग, it is not according to me, it is the report given by the USC International Religious Freedom. Okay, so now India should show some serious concern towards the information given by America. Conclusion में देखिए यहाँ पे वही बोला गया है, very rarely have we seen that USA sanctions a country over religious discrimination issue. So now we should be show some seriousness, or we should think over the issue according to the report given by the America. So this is all about the important information with respect to this particular Uyghur bill. So next important issue here, so यहाँ पे मैंने कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे डाला है, आप लोग इसे देख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला है कि उइगुर सारे मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉन्सेंट्रेटेड इन द कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट जिंजियांग प्रोविंस, मैंने आप लोगों को अभी बताया। दे क्लेम क्लोजर एथनिक टाइज टू टर्की बोला जाता है। व्हाई इज चाइना टारगेटिंग द उइगुर्स? जिंजियांग इज टेक्निकली एन ऑटोनोमस रीजन विद इन चाइना, इट्स लार्जेस्ट रिच, वहां पे सबसे बढ़िया मिनरल, बहुत ही मतलब मिनरल रिच एरिया है, और ये बॉर्डर शेयर करता है तकरीबन 8 देशों के साथ, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान। So all of some important information I just put it here. So after that it is written that over the past few decades as economic prosperity has come to Xinjiang, it has brought within it in the large number of the majority Han Chinese। तो यहाँ पे वही सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है, मैंने जो आपसे डिस्कस किया अभी। तो आप लोग एक बार वीडियो को बंद करके इसे एक ओवरऑल व्यू या आप लोग इसे आराम से एक बार देख सकते हो। So now we are going to see the next important topic, which is known as GPAI, Global Partnership on Artificial Intelligence. Why it is so much important? Because recently India joins GPAI, Global Partnership Artificial Intelligence, as a founding member to support the responsible and human-centric development and the use of AI. उसके पहले हम लोग जानेंगे कि what is the meaning of AI. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो AI का मतलब क्या है। So यहाँ पे देखो मैंने उसका डेफिनेशन भी डाला हुआ है, तो you can see here AI is an interdisciplinary science with multiple approaches, but advancement in the machine learning and deep learning are creating paradigm shift in virtually every sector of the tech industry. In simple terms, if I will tell that everything is going to be done by in a computerized manner, or we can say in the case of artificial intelligence or with respect to the machine intelligence, you can say artificial intelligence is also known as machine intelligence also. So whatever you are going to tell, no problem, same artificial intelligence का मतलब machine intelligence ही है। तो अगर if everything is going to be done by the robot instead of human beings, or every kind of human centric approach is going to be done by the machine, then it is known as the artificial intelligence. So I hope that now we got a clear idea with respect to what is exactly AI. तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखो एक मतलब हमारे जो रविशंकर जी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, मैंने डाला है यहाँ पे रविशंकर प्रसाद का। Delighted to announce that India has joined the GPAI today as a founding member. This multi-sector international partnership will promote responsible and human-centric development and use of AI. तो अभी फिलहाल ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो देखो आप लोग इसे यहां से आप लोग जान सकते हो कि इसका फाउंडर मेंबर्स कौन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, EU, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, स्लोवेनिया। यहां से मैं एक बात आप लोगों को बोल सकता हूं कि जो भी सारे यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर हैं,
G+ country, G7 plus other nations. You can see here G7 कंट्रीज में आप लोगों का कौन कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट्स आता है, कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, आपका यहाँ पे यूके आता है, और एक कंट्री आता है जापान, शायद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जापान आता है और इटली आता है। हो गया 7, 3, 2, 5, 2, 7। मैंने आप लोगों को बोला था 2014 में इन 2014 G8 became G7 because originally it was G8. In 2014 Russia came out from G8 and it became G7. I discussed these things, why Russia came out, or you can say Russia took out that particular organization, threw Russia out from this particular G8 because of the Crimea issue. These things I already discussed in our previous videos. Kindly refer the videos, then you will get a clear knowledge. So now अभी मैं फिलहाल अभी यही बोल सकता हूं कि जो GAPI है, it is a this particular organization consists of all the countries of G7 with some other countries like Korea, Mexico, Slovenia, India, and one organization is also there, that is EU, European Union, जिसमें अभी तकरीबन 27 देश प्रेजेंट है। तो अभी ये क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यही है, स्लोवेनिया, इट इज ए वेरी स्मॉल यूरोपियन कंट्री। व्हाई आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग स्लोवेनिया, यू कैन सी हियर दिस कंट्री अराउंड उसका पॉपुलेशन 20 लाख होगा। इट इज ए हाई इनकम एडवांस्ड इकोनॉमी विथ ए वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप लोगों को पता होगा, इसका एक इंडेक्स निकलता है जिसको निकालता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है 3 चीजों को पैरामीटर में लेके, एक है आपका हेल्थ, दूसरा है आपका पर कैपिटा इनकम, तीसरा है आपका लिटरेसी लेवल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। UNDP releases the human development index report by taking these 3 things into criteria: health, per capita income and literacy level। तो अभी मैं यहाँ पे स्लोवेनिया के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में या 18 में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर कोविंद साहब, ही वेंट टू स्लोवेनिया एंड वहां पे इन्होंने, देखो मैंने उनका ट्विटर का एक पिक्चर लेके यहाँ पे डाला है। Both leaders discussed cooperation in high-tech and clean energy, robotics and artificial intelligence. Why I am showing you these things? Because here they are giving more importance to AI. और ये भी कहा जाता है कि स्लोवेनिया is the first country in the world who opened a university of international level to teach or to provide the education for the artificial intelligence. उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल पार्टनरशिप पे क्या बोला गया है, bridge the gap between the theory and the practice on AI by supporting the cutting edge research and applied activities on AI related priorities। मतलब हमारे अभी देखो यहाँ पे बोला भी गया है कि अभी देखो हमारे now we are going on in a pandemic condition like कोरोना का बाद अभी भी हमारा देश का इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रहा है। whatever the scenario, the people should go to the office, they will do their day to day work. If it is not going to be happen, then the entire economy will become in a big zero and the financial crisis will come to picture। तो पोस्ट कोविड के बाद, मतलब कोविड के बाद पोस्ट कोविड conditions, how it should be, how we are going to regulate the world after this particular pandemic situation, all the things are going to be discussed here। So you can see in the next slide, these things I already discussed with you। So here it is an example GPAI will be able to take advantage of OECD Organization of यहाँ इसके बारे में मैंने यहाँ पे डाला है, देखो Organization for Economic Cooperation and Development। फिलहाल अभी OECD का मेंबर ना ही इंडिया है ना ही चाइना है, पर नाउ यू आर हैविंग ए डाउट व्हाई OECD का इसमें मतलब कौन सा रोल OECD प्ले कर रहा है।
अभी उसके पहले नाउ आई वांट टू शो यू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ OECD। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने ब्लू कलर में भी दिखाया है, OECD काउंसिल रिकमेंडेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने बोल दिया था यहाँ पे, उनका अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखोगे, AI शुड बेनिफिट पीपुल एंड द प्लैनेट बाय ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर अराउंड AI system to ensure that people should understand AI based outcomes and can challenge them। देखो, whatever the things I am showed you here, I am trying my level best to reach up to you guys. I am taking pictures of different websites. It's my humble request to kindly go through the video, subscribe the Banik Smart Class channel, because we are giving a lot of effort. The entire fraternity, they are giving their 100%. I hope that after giving that much number of or that much amount of information, it is easy for you to catch the thing। तो अभी OECD का पूरा मतलब उन लोगों का प्रिंसिपल क्या है, उन लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर व्यूज क्या है, उसीलिए इसी के वजह से आई शोड यू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ OECD। उसके बाद नाउ यू कैन सी हियर 1 minute। So here GPAI will be able to take advantage of the OECD expertise on AI policy and its leadership in setting out the first international standard for trustworthy AI। यहाँ पे देखो, मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पे एक रोबोट नर्स की जगह पे काम कर रहा है। If the things will happen like this, then the transparency level will increase, the efficiency of the work will increase। So it is a perfect example of artificial intelligence और मशीन इंटेलिजेंस। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखो बोला गया है OECD पेरिस में है, और ये जो AI के ऊपर जो यहाँ उसका जो साइड ब्रांचेस होगा, एक आपका मॉन्ट्रिलो कनाडा, हालांकि मॉन्ट्रिलो कनाडा का कैपिटल नहीं है, कनाडा का कैपिटल ओटावा है, और उसके बाद 2 जगह पे होगा, एक है कनाडा, दूसरा है आप लोगों का फ्रांस। सो नाउ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? OECD। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, India and China, they are not the member of Organization for Economic Development and Economic Cooperation and Development। Now we are going to the next slide। You can see here now this is AI portal। ये इंडिया का इनिशिएटिव है, मतलब इंडिया ने क्या किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए। व्हाट इंडिया डिड, व्हाट आवर कंट्री डिड, it has been developed jointly by the National E-Governance Division of Ministry of Electronics and Information Technology and NASSCOM। उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये नरेंद्र मोदी नीचे है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एजुकेशन के बारे में, आप लोगों का मेडिकल के बारे में, ट्रीटमेंट वगैरह, कौन सी मतलब फैटर्निटी आप कहाँ से अवेल कर सकते हो, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। इफ यू वांट टू नो मोर, यू कैन गो and see the official website of India AI। So why I am trying to show you these things, if you will see the things in the pictures manner, it will be easy for you to understand and you can keep the things in your mind for a longer period of time। Okay, सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे वही सब चीजें यहाँ पे लिखा गया है। देखो आप लोग देख सकते हो, फाउंडिंग मेंबर्स मैंने बताया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटाली। हाउ दिस इनिशिएटिव वर्क्स, इट विल ब्रिज द गैप। देखो ये सारा का सारा वर्ड उन्होंने कॉपी किया है PIB से, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट का एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है वो, जिसमें हर दिन अंडर व्हिच मिनिस्ट्री व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, दिस थिंग्स आर कमिंग हियर। सो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वेबसाइट ऑल्सो। आई एम राइटिंग हियर द नेम ऑफ द वेबसाइट, PIB, Press Information Bureau। First you will see the activity of President Office, after that you can see PMO, after that what are the day-to-day activities happening with respect to different ministries or portfolios, they are updating it every day। Okay, so now we are going to see the next important issue। You can stop the video and you can read the entire thing what I wrote here, but the same thing what I showed you in the picture, it was present there also। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे एक important thing, एक मिनट।
हियर यू कैन सी Why banning trade with China will hurt India? आप लोगों को अभी पता होगा, मतलब बहुत से फेसबुक में हो या ट्विटर में हो या कोई भी आप लोग सोशल मीडिया ले लो या न्यूज़पेपर, बहुत सी जगह पे लोगों का देशभक्ति जोर जोर से सामने आ रहा है कि वी शुड गो फॉर टू बैन चाइना और वी शुड नॉट इम्पोर्ट एनी काइंड ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना। देन उसके बाद बीच में आया देन वी शुड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ ऐप लाइक टिकटॉक। सी गाइस, बहुत सी लोगों को पता भी नहीं है हम लोग जो चीज यूज कर रहे हैं वो कौन सा देश का है। जैसे कि हम लोग बयानबाजी करना बहुत इजी है, बट व्हेन द थिंग्स कम फॉर एक्शन द पीपल आर नॉट बोदरिंग अबाउट दैट। इवन इन इंडिया पीपल आर नॉट पेइंग टैक्सेस, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट ए थिंग ऑफ नेशनलिटी, ए फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर द पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। सो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि मतलब क्या क्या, मतलब क्यों, व्हाई बैनिंग ट्रेड विद चाइना विल हर्ट इंडिया, मतलब व्हाई इट इज नॉट हर्ट तो नहीं बोल सकते, व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया टू बैन द प्रोडक्ट्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम चाइना। देखो यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है वही चीज मैं पिक्चर में भी डाला हूं, पर क्यों मैं पिक्चर को ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग वो पिक्चर्स देखोगे आपके लिए वो इजी हो जाएगा एक चीज पकड़ने के लिए। क्योंकि जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे, कोई भी चीज लिखने या पढ़ने से अच्छा अगर हम लोग उसे पिक्चर के माध्यम में सामने देखें तो वो हमारे दिलो दिमाग में बहुत समय तक रहता है। तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर पिक्चर्स आज कंपेयर टू लाइक राइटिंग पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस। So you can see here the first image what I put here, this one you can see Indians call for boycott of Chinese goods after fatal border clashes. When I am talking this border, it's not new. I hope you all know the issue what is happened in the Galwan Valley in the Ladakh region. ओके, सो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप लोग देख सकते हो इंडिया का कोई एक इंसान वो चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसी का पोस्टर लेके यहाँ पे फाड़ने के लिए खड़ा है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने डाला है। आज बॉयकॉट चाइना ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, OnePlus 8 Pro सेल्स आउट विद इन मिनट्स। तो कैसा देखो यहाँ पे मतलब मस्ती वाला बात यहाँ पे लिखा गया है। ये न्यूज 18 का एक मतलब मैंने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्लिक करके पोस्ट किया है। तो सबसे बड़ा दिक्कत हमारे देश के लिए यही है कि ये जो फोन्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं कि जैसे पकड़ लो आपका जियोमी, वीवो, ओप्पो, जिसको मतलब इंडिया का अभी फिलहाल ये ओप्पो का बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स आर एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ओप्पो मोबाइल। सो कि ये जो चाइनीज मोबाइल्स आर टेकिंग अराउंड 72% ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया, मतलब जो मोबाइल की दुनिया का 72% शेयर मार्केट है इंडिया में, वो किसके ऊपर है? चाइना के द्वारा मतलब कंट्रोल किया जा रहा है। बाकी जो 25% रहा वो चाहे सैमसंग हो, चाहे आप लोगों का एप्पल हो या सोनी हो, एलजी हो, वो जो बाकी सारे मोबाइल है वो तकरीबन 20 से 25% आएंगे। और उसके अलावा जो 75% ऑफ शेयर मोबाइल मार्केट इन इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय ए कंट्री लाइक चाइना। सो देखो इसमें फर्क क्या है। देखो हमारे देश में लोगों का इनकम बहुत कम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पीपुल हु इज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 7,000 to 8,000 rupees per month and we will go and say to him that no my dear friend, you should not buy any kind of phone from China, you should go for any kind some phone from America manufacturer or any kind of phone which is manufactured in Japan। देखो हमारे देश में लोग पैसा बचा बचा के बहुत डिफिकल्टी से ये सब काम करते हैं। चाइना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, वो कम दाम में बहुत सी फीचर्स को मोबाइल वगैरह में डालता है, जिसके वजह से लोग इंडिया के हो या बाहर के देश के हो, दे ट्राई टू प्रीफर, दे ऑलवेज the people try to prefer cheap products with having more facilities। so चाइना क्या करता है, मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है, कौन सी देश का मार्केट कैसा है। आप लोगों को पता भी होगा, मैंने आप लोगों से जिक्र किया था एक चीज के बारे में, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। फिलहाल इंडिया इसको अभी तक समर्थन नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ इट पासेस थ्रू आवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आई डिस्कस्ड विथ यू रिगार्डिंग दिस थिंग्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सो अभी फिलहाल प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में लोगों से हम लोग देशभक्ति इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट सडनली।
So next, if you will see in the slide, you can see here the India sales of those top Chinese smartphones brand told more than $16 billion in 2019. जो इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन का डाटा है, तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफिशियली सेड दैट दे प्लान टू इम्पोज हायर ट्रेड बैरियर्स, मतलब यहाँ पे जो इंपोर्ट ड्यूटी होगा, जैसे कि पकड़ लो हमारे देश में कोई भी, आप लोगों को एक वर्ड, मतलब इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट 1 to 2 years, आप लोगों को पता होगा चाइनीज डॉल के बारे में, चाइनीज डॉल के बारे में आप लोगों को पता होगा। जैसे कि पकड़ लो हमारे यहाँ एक डॉल कितने में बनता है, बिक्री होता है, मतलब मार्केट में उसमें कितने में द इंडियन डॉल यूज्ड टू बी सेल 10 रुपीज। चाइना क्या करता है, अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम, मतलब चाइनीज डॉल इंडिया में कितने में बिक्री होता है, यहाँ पे आप लोग मुझे बोल सकते हो, पकड़ लो 8 रुपीज। तो ऑटोमेटिकली व्हिच डॉल इज गोइंग टू बी सेल, Chinese doll. Then what will happen to the domestic manufacturers of India? They will be the sufferer. तो अभी इंडिया क्या करता है, जैसे कि पकड़ लो जब पारादीप पोर्ट में आके ये चाइनीज डॉल उतरेगा, उसके ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स इनपुट किया जाता है जिसको बोला जाता है कस्टम, जिसको बोला जाता है इंपोर्ट ड्यूटी, or you can say the custom duty. I hope guys you know these things in your economics chapter. The economics video is going to be uploaded as soon as possible. So these are some common information what I want to share with you. Import duty का मतलब यही है, कोई भी अगर चाइनीज डॉल 8 रुपए में आके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का कोई भी हानि कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है, उसी पर्टिकुलर चाइनीज डॉल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी डालेगा। अगर ये 8 रुपए का डॉल के ऊपर 4 रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 12 रुपया। अभी बोलो कम पैसा कौन है, इंडियन डॉल। तो अभी इंडिया के जो लोग हैं वो कहां से शिफ्ट करेंगे, चाइनीज डॉल से इंडियन डॉल को। Okay, so this is the thing which is used to be happened with respect to international trade. Okay, so the government is now going to do the same thing, or the same thing is written here. You can say Indian government officially said that they plan to impose higher trade barrier and raise import duty. अगर import duty को ऊपर किया जाएगा या बढ़ा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली चाइनीज प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर चाइनीज प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो फिर कोई भी डाउट नहीं, चाइना ऑटोमेटिकली कहां पे जाएगा। आप लोगों को पता है 1985 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, क्या नाम है उसका, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसको रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट। ये 1947 से लेके कंटिन्यू किया 1995 तक। फाइनली इन द प्लेस ऑफ गैट WTO came to picture in 1995 1st of January. So these are some important information with respect to WTO and GATT. We have to wait and watch that if China will go near to WTO, what will be the scenario. Okay, so these are the things with respect. और एक important चीज यहाँ पे बताया गया है कि हमारे साथ चाइना का ट्रेड डिफिसिट कितना है, $59 बिलियन। उसका मतलब इंडिया का चाइना को जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट का मात्रा हमारे इंपोर्ट से बहुत कम है। That means we are importing more from China as comparing to export. इसी के अंदर जो डिफरेंस है, this difference is $53 बिलियन। मतलब अगर हम लोग 10 रुपए का चीज चाइना को भेज रहे हैं, तो फिर हम लोग वहां से 50 रुपए का चीज चाइना से खरीद रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बहुत ज्यादा कम है with respect to a country like China. Okay, so now we are going to see the next video, impact. The decision will target imports worth $8 to $10 billion with the aim of deterring non-essential lower quality imports. उसी के बारे में कुछ बताया गया है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 300 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन अराउंड 300 प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। वी हैव टू वेट एंड वॉच इफ दिस थिंग विल कम टू पिक्चर, व्हाट विल बी द रिएक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना।
ओके, सो देखो अभी यहाँ पे लिखा गया है कि हमारा जो चाइना अकाउंटेड फॉर, देखो मैंने बोला था ना आप लोगों को, अभी यहाँ पे देखो इंपोर्ट इज मोर आज कंपेयर टू हट एक्सपोर्ट, मैंने अभी आप लोगों को यही चीज यहाँ पे बताया था। देखो वही लिखा है, चाइना अकाउंटेड फॉर ओवर 5% ऑफ टोटल इंडियाज एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर एंड मोर देन 14% ऑफ इंपोर्ट्स, मतलब इंडिया को चाइना 14% चीज भेजता है, इंडिया से 5% चीज लेता है, मतलब इंडिया से 5% चीज एक्सपोर्ट होता है और इंडिया 14% चीज चाइना से हमारे देश को लाता है। ये फिगर आपको और भी क्लियर कर देगा। देखो हमारे जो टोटल इंपोर्ट का अगर हम लोग एक पाई चार्ट लेंगे, 14.09% वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। चाइना के बाद अगर हम लोग किसी और से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉन अदर देन यूएसए, उसके बाद यूएई, उसके बाद सऊदी अरबिया। सो इट इज नॉट, और सबसे ऊपर है कौन? चाइना। सो इट इज नॉट इजी फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया टू सडनली बैन चाइना with respect to all kind of products. So it is one of the most important information that you should know. It is not that much easy for us. उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट चाइना सेल्स टू इंडिया। देखो सबसे बड़ा चीज, चाइना यहाँ पे इंडिया को बहुत सारे चीज एक्सपोर्ट करता है, जैसे फर्टिलाइजर्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। देखो भारत में अभी मेक इन इंडिया इतना बड़ा इनिशिएटिव हुआ नहीं है, आत्मनिर्भर भारत फिलहाल 1 महीना 1.5 महीना हुआ शुरू हुआ है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच ए बिग सक्सेस फ्रॉम सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स, इट विल टेक सम टाइम। अभी क्या हुआ है, हमारे जो मारुति, बजाज वगैरह जो गाड़ी है, उसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स, जो उसमें जो इक्विपमेंट्स लगता है, these equipments we are importing from China. If we will stop or if we will ban China with respect to such type of raw material, then automatically these companies they will shift it to from India, from China to Europe. If they will buy the things or raw materials from country like America or European countries, then automatically the price will be more. और आप लोगों का जो 6 लाख 7 लाख का जो गाड़ी आता है वो कितना हो जाएगा, 8 लाख या 8,50,000 के तकरीबन प्राइस बढ़ जाएगा, which will be a really a headache condition for a country like India. आप लोग समझ रहे हो ना, हम लोग चाइना से रॉ मटेरियल लाते हैं, रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत कम है। अगर हम लोग ये सारे चीज चाइना से लाना बंद कर दिए, देन ऑटोमेटिकली ये जो ऑटो कंपोनेंट्स है, जो कंपनीज है, वो लोग चाइना से शिफ्ट कर जाएंगे यूरोप को। अगर वो लोग यूरोप से लाएंगे उसका प्राइस ज्यादा रहेगा, और अगर प्राइस रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा होगा तो फिर गाड़ी का भी प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल सा बात है यार। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बजाज ने एक ट्वीट करके भी लिखा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, बैनिंग चाइनीज इंपोर्ट्स और रेजिंग टैरिफ्स ऑन देम विल हॉट इंडस्ट्री। कंज्यूमर किसने बोला है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, मारुति और बजाज ऑटो ने। उन्होंने बोला है अगर चाइना के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर अगर हम लोग टैरिफ डाल लेंगे तो फिर ये इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मतलब क्या, घाटा हो जाएगा। तो यही सब चीजें हैं। और दूसरा बात, आप लोग फार्मास्यूटिकल के ऊपर जान सकते हो, हमारे देश में सबसे बड़ा बात यही है कि हम लोग जेनेरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का ये वेबसाइट है, वहां पे उन्होंने डाला है कि 2018-19 में इंडिया ने तकरीबन 19.13 बिलियन यूएस डॉलर और 2019-20 में 13.69 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है मेडिसिनल प्रोडक्ट। ये जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है, ये जो फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स है, इसका रॉ मटेरियल हम लोग कहां से लाते हैं, चाइना से। इफ we are going to ban China or if we will increase the import duty on China, then automatically it will not only harm the mobile sectors, it will harm the auto equipments, it will harm the pharmaceutical companies, etc. So lots of issues are there which should be discussed in a prosperous manner before taking any kind of steps. So these are some common information with respect to, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट रेडीज 10,000 crore स्कीम टू बूस्ट डोमेस्टिक एपीआई। तो वही एपीआई का मतलब है आप लोगों का जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन वगैरह तैयार करने के लिए, जो उसका जो
जो मतलब उसका जो फॉर्मूला है, जो उसका रॉ मटेरियल जो हम लोग कहां से लाते हैं, चाइना से। ठीक है, तो इंडिया इंपोर्ट्स वही चीज यहां पे डाला गया है। तो चाइना का देखो रिएक्शन यहाँ पे क्या है। ग्लोबल टाइम्स मैंने आप लोगों को बोला था इट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ चाइना, पूरा का पूरा चाइना गवर्नमेंट का कंट्रोल है। उन्होंने क्या बोला है देखो, बड़ा मतलब इट्स अ वेरी फनी थिंग व्हिच इज रिप्लाइड बाय चाइना। चाइना ने बोला इंडिया का जीडीपी जितना भी है उससे 5 गुना ज्यादा जीडीपी किसका है, चाइना का। और अगर चाइना के साथ हम लोग, अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड भी बंद कर देगा तो फिर चाइना को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो विथ सच ए गैप हाउ कुड इट be easy for a small economy to sanction a large one. India will suffer more losses if it launches a trade war against China. देखो दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन आपके साथ बहुत बढ़िया से कर रहा हूं, तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग वहां पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक भी क्यों किया उसे आप लोग बताइए, बिकॉज लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आर गिवन बाय द बानिंग, सो आई होप दैट यू गाइस आर गेटिंग ए क्लियर नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिंग्स। तो उसके बाद हम लोग और एक चीज बच गया यहाँ पे जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च्ड इन द ई सेरेमनी। सो इंडियन गैस एक्सचेंज क्या है, ये एक नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CNBC का ऑफिशियल वेबसाइट है। इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च्ड, गवर्नमेंट आइज 15% शेयर ऑफ गैस इन एनर्जी मिक्स। इसका मतलब क्या है, देखो एक्सचेंज का मतलब यही है, एन एक्सचेंज इज ए मार्केट वेयर सिक्योरिटीज, commodities, derivatives and other financial instruments are traded. The core function of an exchange is to ensure fair and orderly trading and the efficient dissemination of price information for any securities trading on that exchange. देखो एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज मतलब पैसे का ही हो, एक्सचेंज आप लोगों का कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है सिक्योरिटीज के बारे में, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब हम लोग वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज, लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर लाइक BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप लोगों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप लोगों का कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर एंड हियर इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। वन इज द मल्टी Commodity Exchange of India, another one is the National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX. So these are some organizations which are involved in the exchange of the commodities like energy, metal, bullion, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। अभी यहाँ पे इंडियन गैस एक्सचेंज जो किए हैं हमारे जो माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने क्या किया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। The IGX, okay, gas exchange is a digital trading platform that will allow the buyers and sellers of natural gas to trade both in the spot market and the forward market. यहाँ पे मैंने दो चीजें आप लोगों को बताया, what is the meaning of this forward market and what is the meaning of this spot market. This thing you should know, difference between the spot market and forward market. उसके पहले मैंने एक वर्ड यहाँ पे आप लोगों को बताया IGX। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो IGX is a organization, Indian Energy Exchange Limited, which is founded in 2008, headquartered at New Delhi. It is an organization which particularly deals with the power trading exchange regulated by Central Electricity Regulatory Commission, and it was started in operation as I told you in 2008. जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बोला कि जैसे आप लोगों का कोई शेयर मार्केट के लिए अगर हम लोग एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, BSE है, NSE है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो 2008 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर उसका कहां पे है, न्यू दिल्ली में। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को दो चीज बताया, डिजिटल ट्रेडिंग होगा, मतलब पहले जो एक्सचेंज हो रहा था लोग आमने सामने आ रहे थे, अभी फिलहाल ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे देश में डिजिटलाइजेशन बहुत जोर शोर से चल रहा है। इट इज a digital platform where the buyer and seller they will meet each other in a digital way and then the exchange
mechanism will going on. Then what is the meaning of spot market and forward market? Spot market का मतलब कोई अगर तुरंत गैस खरीदना चाहता है if a person wants to buy a gas or any kind of exchange then he can do it suddenly, that means spot market. Forward market जैसे आप लोगों का शेयर मार्केट में होता है, सोना का भाव मतलब 3 महीने के बाद एक्सपायर होगा, उसी तरह फॉरवर्ड मार्केट में अगर आप लोग 6 महीने 7 महीने के बाद डिलीवरी लेना चाहते हो, you can do it with respect to the forward market. Now what is the important information here? For the time being, trading will take place only in the imported natural goods, natural gas, not goods, sorry, the imported natural gas. Imported का मतलब दोस्तों यही है जो इंडिया के बाहर से आता है। मैं अगर आप लोगों को एक ओवरऑल मैप पे बताऊं, हमारा जो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, यहाँ पे 9 कोस्टल स्टेट्स आर देयर, यहाँ पे भी हम लोगों का ऑनशोर और ऑफशोर ड्रिलिंग होता है। पर ये जो गैस एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया है, इसमें ओनली इंपोर्टेड नेचुरल गैस मतलब जो इंडिया के बाहर से हमारे देश को आता है उसी को इंक्लूड किया गया है। हमारे देश में जो नेचुरल गैस को प्रोडक्शन जिसका होता है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर इंडिया में जो नेचुरल गैसेस वगैरह जिसका प्रोडक्शन होता है उसका प्राइस कौन डिटरमिन करेगा? द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सी हियर द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो इंडिया से बाहर या इंडिया में जो भी सारे नेचुरल गैस बाहर देश से इंपोर्ट होता है तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। पर हमारे देश में डोमेस्टिकली जो नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया जाता है उसका प्राइस खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। इट वोंट बी सोल्ड ऑन द गैस एक्सचेंज। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। Maybe they will ask this question with respect to a statement oriented question. नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो वही चीज लिखा गया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान has indicated that a new gas policy will include reforms in domestic gas pricing। और बहुत सी जगह पे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी बोला है कि हम लोगों को इसमें इंक्लूड करो, क्योंकि बहुत सी जगह पे दैट बाय द गवर्नमेंट आर नॉट वायबल गिवन द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, कहीं कहीं पे होता है। तो हमारे जो माननीय प्रधान जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बोला है कि दिस थिंग इज नॉट फॉर ए बिजनेस, इट इज पर्टिकुलरली फॉर इम्प्रूविंग द पेट्रोलियम और द पावर सेक्टर ऑफ इंडिया। सो उसके बाद यहाँ पे हाउएवर फॉलोइंग द अपील्स, 1 मिनट, देन उसके बाद देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। द एक्सचेंज इज एक्सपेक्टेड टू बी फैसिलिटेट द ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी इन नेचुरल गैस और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस एज करेंटली अकाउंट फॉर लेस देन द हाफ ऑफ कंट्रीज नेचुरल गैस कंजप्शन। ओके, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इससे आप लोग वीडियो को मतलब थोड़े टाइम के लिए बंद करके ये सब इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। सो दीज आर व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू, द सेम थिंग इज रिटन हियर। So like that guys, I discussed all the important current issues of your first week, second week and third week of June. What I thought that after that one video will come with respect to the first week of May current affairs. उसके बाद I am thinking that I will make around 50 to 60 questions which we are going to discuss, which will include the current affairs of May and June. Okay, so now we are going to discuss some 15 or 10 number of questions what we studied from the third week June current affairs. So here you can see. देखो, एक्सचेंज का मतलब यही है, an exchange is a market where securities, commodities, derivatives and other financial instruments are traded. The core function of an exchange is to ensure fair and orderly trading and the efficient dissemination of price information for any securities trading on that exchange। देखो, एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है। एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज मतलब पैसे का ही हो, एक्सचेंज आप लोगों का कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है सिक्योरिटीज के बारे में, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब हम लोग वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज, लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर लाइक बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप लोगों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप लोगों का कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर एंड हियर इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। वन इज द मल्टी
Commodity Exchange of India. Another one is the National Commodity and Derivatives Exchange, NCDEX. So these are some organizations which are involved in the exchange of the commodities like energy, metal, bullion, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। अभी यहाँ पे इंडियन गैस एक्सचेंज जो किए हैं हमारे जो माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने क्या किया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। द IGX, okay, gas exchange is a digital trading platform that will allow the buyers and sellers of natural gas to trade both in the spot market and the forward market। यहाँ पे मैंने दो चीजें आप लोगों को बताया, what is the meaning of this forward market and what is the meaning of this spot market। This thing you should know, difference between the spot market and forward market। उसके पहले मैंने एक वर्ड यहाँ पे आप लोगों को बताया IGX। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो IGX is a organization, Indian Energy Exchange Limited, which is founded in 2008, headquartered at New Delhi। It is an organization which particularly deals with the power trading exchange regulated by Central Electricity Regulatory Commission, and it was started in operation as I told you in 2008। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बोला कि जैसे आप लोगों का कोई शेयर मार्केट के लिए अगर हम लोग एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, BSE है, NSE है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो 2008 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर उसका कहां पे है? न्यू दिल्ली में। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को दो चीज बताया, डिजिटल ट्रेडिंग होगा, मतलब पहले जो एक्सचेंज हो रहा था लोग आमने सामने आ रहे थे, अभी फिलहाल ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे देश में डिजिटलाइजेशन बहुत जोर शोर से चल रहा है। इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म where the buyer and seller they will meet each other in a digital way, and then the exchange mechanism will going on। then what is the meaning of spot market and forward market? spot market का मतलब कोई अगर तुरंत गैस खरीदना चाहता है if a person wants to buy a gas or any kind of exchange then he can do it suddenly, that means spot market। forward market जैसे आप लोगों का शेयर मार्केट में होता है, सोना का भाव मतलब 3 महीने के बाद एक्सपायर होगा, उसी तरह फॉरवर्ड मार्केट में अगर आप लोग 6 महीने 7 महीने के बाद डिलीवरी लेना चाहते हो, you can do it with respect to the forward market। Now what is the important information here? For the time being trading will take place only in the imported natural goods, natural gas, not goods, sorry, the imported natural gas। imported का मतलब दोस्तों यही है जो इंडिया के बाहर से आता है। मैं अगर आप लोगों को एक ओवरऑल मैप पे बताऊं, हमारा जो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, यहाँ पे 9 कोस्टल स्टेट्स आर देयर, यहाँ पे भी हम लोगों का ऑनशोर और ऑफशोर ड्रिलिंग होता है। पर ये जो गैस एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया है, इसमें ओनली इंपोर्टेड नेचुरल गैस, मतलब जो इंडिया के बाहर से हमारे देश को आता है उसी को इंक्लूड किया गया है। हमारे देश में जो नेचुरल गैस को प्रोडक्शन जिसका होता है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर इंडिया में जो नेचुरल गैसेस वगैरह जिसका प्रोडक्शन होता है उसका प्राइस कौन डिटरमिन करेगा? द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सी हियर, द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो इंडिया से बाहर या इंडिया में जो भी सारे नेचुरल गैस बाहर देश से इंपोर्ट होता है तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। पर हमारे देश में डोमेस्टिकली जो नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया जाता है उसका प्राइस खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। इट वोंट बी सोल्ड ऑन द गैस एक्सचेंज। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। Maybe they will ask this question with respect to a statement oriented question। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो वही चीज लिखा गया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान has indicated that a new gas policy will include reforms in domestic gas pricing। और बहुत सी जगह पे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी बोला है कि हम लोगों को इसमें इंक्लूड करो, क्योंकि बहुत सी जगह पे दैट बाय द गवर्नमेंट आर नॉट वायबल गिवन द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, कहीं कहीं पे होता है। तो हमारे जो माननीय प्रधान जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने बोला है कि दिस थिंग इज नॉट फॉर ए बिजनेस, इट इज पर्टिकुलरली फॉर इम्प्रूविंग द पेट्रोलियम और द पावर सेक्टर ऑफ इंडिया। सो उसके बाद यहाँ पे हाउएवर फॉलोइंग द अपील्स, 1 मिनट,
देन उसके बाद देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, द एक्सचेंज इज एक्सपेक्टेड टू बी फैसिलिटेट द ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी इन नेचुरल गैस और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस एज करेंटली अकाउंट फॉर लेस देन द हाफ ऑफ कंट्रीज नेचुरल गैस कंजप्शन। ओके, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इससे आप लोग वीडियो को मतलब थोड़े टाइम के लिए बंद करके ये सब इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। सो दीज आर व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू, द सेम थिंग इज रिटन हियर। So like that guys, I discussed all the important current issues of your first week, second week and third week of June. What I thought that after that one video will come with respect to the first week of May current affairs. उसके बाद I am thinking that I will make around 50 to 60 questions which we are going to discuss, which will include the current affairs of May and June. Okay, so now we are going to discuss some 15 or 10 number of questions what we studied from the third week June current affairs. So here you can see. So here I want to 1 minute. Okay, so this is the first question. Consider the following statement with respect to forex reserves. So मैं यहाँ पे आप लोगों को 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद उसका आंसर दोगे। तो फॉरेक्स रिजर्व के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है, दे आर एक्सटर्नल एसेट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड फॉरेन करेंसी एसेट अकोमुलेटेड। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फंक्शंस एज द कस्टोडियन। देन राइज इन द फॉरेक्स रिजर्व में हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द रूपी। ये तीनों में से कौन सा करेक्ट है? तो अभी आप लोगों का 5 सेकंड हो गया, तो अभी मैं आप लोगों का आंसर यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक बात यहाँ पे देखो, ये जो स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसे आप लोग 1-2 सेकंड में ही कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे बोला गया है जो एसडीआर है वो किसके द्वारा रखा जाता है? वर्ल्ड बैंक। नो, दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग बिकॉज दैट पर्टिकुलर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इज यूज्ड टू बी मेंटेन्ड बाय आईएमएफ, International Monetary Fund. So statement 1 is wrong. If statement 1 is wrong, then B should not be the answer, C should not be the answer, D should not be the answer. What should be the correct answer? Tell me. Option A. So here you can see. Answer is option A. I just mentioned it here. So answer is option A. Okay. So now going down. The next question number 2. So here you can see the Reserve Bank of India has recently constituted a 5-member internal working group headed by P.K. Mohanty. This committee I already discussed with you with your 3rd June current affairs, 3rd week of June current affairs. So for which this committee was formed? Tell me. To propose long-term solution for MSME or ATM transaction or private sector bank. बिना देखे ही आप लोग आंसर कर सकते हो इसको। आंसर क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, सो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू रजपर्व, सॉरी नॉट राजा, रजपर्व फेस्टिवल. It is a 3-day long festival celebrated in the state of Odisha. Yes, this statement is correct, no doubt. We are the Odia people. The festival is dedicated to Mother Earth and the people do not undertake any construction work or tilling during the festival. Yes, this statement is also correct. So answer should be C. Okay. Answer is C. So you can see here. So next question number 4, you can see here. Consider the following statement with respect to the Lonar Lake. Okay, it is a freshwater lake and only known to meteorite crater in the ballastic rock. It is a notified national geoheritage monument. Tell me the answer. This question was asked because recently we saw the Lonar Lake totally becomes pink. This is the reason why this question was here. So kindly give me the answer.
Okay. Here the answer is Bombay. That means first statement is incorrect. Why? You can see here. It is a lake in Maharashtra. Now only I told you it totally becomes what? Your pink color. The same thing. This entire lake became pink. A team of scientists from the National Environment Engineering Research Institute (NEERI) to visit the Lonar Lake. The oversized Lonar Lake formed after a meteorite hit Earth around 50,000 years ago. ठीक है, तो उसके बाद अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था GPAI के बारे में, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ. It is an international and multi-stakeholder initiative to guide the responsible development and use of AI. यूज ऑफ एआई. और दूसरा बात यहां पे बताया गया है, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीपीएआई. तीसरा स्टेटमेंट है, इट विल सपोर्टेड बाय द सेक्रेटेरिएट होस्टेड बाय ओईसीडी इन पेरिस. टेल मी द करेक्ट आंसर. I hope guys you can give the correct answer. Okay. The correct answer is D. All the statements are correct. You can see here. See, international multi-stakeholder initiative, particularly for AI, no doubt. India is a founding member. Yes. Developed or supported by OECD. Yes. All the statements are correct. So now we are going to see the next question here. Consider the following statement with respect to lunar polar exploration mission. मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ ये स्टेटमेंट और ये इंफॉर्मेशन. टेल मी. इट एम्स टू पुट ए लैंडर एंड रोवर ऑन मून सरफेस टू ऑब्टेन एक्चुअल डाटा रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर. जॉइंट मिशन बिटवीन जापान एंड इंडिया. द मिशन विल बी लॉन्च फ्रॉम इंडिया यूजिंग GSLV क्लास लॉन्च व्हीकल. कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है? ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज A 1 and 2. क्यों? ये जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. इसे GSLV क्लास लॉन्च के साथ लॉन्च नहीं किया जाएगा, CSLV के साथ. ओके, PSLV. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर ट्रीटेड ऑन इक्वल विथ SLA. मतलब विधानसभा और विधान परिषद के बीच में कौन सी चीजों को लेके इसमें ऑन इक्वालिटी है, मतलब विधानसभा का पावर विधान परिषद से ज्यादा है. आई थिंक यू गाइज आर ऑलरेडी गेट द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन ए. बिकॉज मनी बिल के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, जो कि आप लोगों का मनी बिल के आर्टिकल 110 में है मनी बिल, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग मनी बिल, द पावर ऑफ लोकसभा इज मोर देन Rajya and similarly the powers of state legislative assembly is more than the power of state legislative council. So this is the important thing you should remember. उसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सिप्री के बारे में पूछा गया है. मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ सिप्री. तो मुझे बोलो, इट इज ए थिंक टैंक डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स आर्म्स बेस्ड इन स्वीडन. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ग्लोबल पीस टेररिज्म रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय सिप्री. ये वाला आपको अच्छी तरह से बताना चाहिए. मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अगर वारहेड किसी के पास है, दिस इज रशिया. उसके बाद यूएसए. मैंने बोला था इंडिया के पास है 150. इंडिया से ऊपर है कौन? पाकिस्तान, जिसके पास है कितना? 160. आई ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स इन माई फास्ट वीडियो, काइंडली सी इट. तो अभी फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? मुझे बोलो, इसका आंसर है डी. ठीक है, क्योंकि वो इंडेक्स को सिप्री नहीं रिलीज करता है. दिस पर्टिकुलर ग्लोबल पीस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो ऑस्ट्रेलिया में है. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मी क्लेन व्हिच वाज रिसेंटली यूज्ड न्यूज फॉर व्हाट पर्पस. ये मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था, कुछ चीजें मैं बाहर से भी डाल रहा हूं, इसीलिए टेल मी द आंसर. जर्मी क्लीन नाम से ही पता चल रहा होगा, टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस. ओके, आंसर है सी. आप लोग देख सकते हो, इसको किसने डेवलप किया है? DRDO ने. ठीक है,
उसके बाद हम लोग अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, मैंने अभी फिलहाल आपके साथ डिस्कस किया। इट इज द फास्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यस, नो डाउट इन दिस सेंटेंस। द बिडिंग इज डन इन एन एनोनिमस मैनर वेयर द बायर एंड सेलर डू नॉट नो देयर काउंटर पार्ट, मतलब जो खरीदेगा जो बेचेगा वो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। मेरे दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट में उन्होंने क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। द आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द बिडिंग इज डन इन एन एनोनिमस मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, एनोनिमस का मतलब एक सीक्रेट वे में होता है। वेयर द बायर एंड सेलर डू नॉट नो देयर काउंटर पार्ट। ओके, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 को, जो हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर एक्सीलेंस के बारे में है। तो अभी मुझे बोलो, दे आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। उसके पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। हमारे देश में ये जो खेलो इंडिया के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, खेलो इंडिया, ये अभी तक 3 साल में, मतलब 2018 में, 2019 में और 2020 में हो चुका है। 2018 में हुआ था कौन सी जगह पे? दिल्ली। 2019 में वहाँ कहाँ पे? पुणे। इन 2020 इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आसाम। It was organized in Assam, the place or the city in Guwahati. Then what was the result of all the 18, 19, 20 Khelo India game? Here in 2018, the first place is taken by Haryana, the second place is taken by Maharashtra, and the third place is taken by Delhi. In the second 2019 in Pune, slight change, Maharashtra came to first place, Haryana came to second place, and Delhi similarly in third position. In 2020, same thing. What was the result of 2019? Same result came in 2020. That means Maharashtra, Haryana, Delhi. It is more important for your exam perspective. HMD, MHD, HMD, MHD, महेंद्र सिंह धोनी के नाम के हिसाब से भी आप लोग याद रख सकते हो। पहले हुआ था दिल्ली में, उसके बाद पुणे में, उसके बाद आसाम में। ये होने का रीजन क्या है कि हमारे देश के जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, दे शुड परफॉर्म वेल इन द ओलंपिक गेम्स। ओके, तो अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन में क्या उन्होंने पूछा है? तो द क्वेश्चन इज, देयर आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू स्ट्रेंथन द इंडियन परस्यूट फॉर एक्सीलेंस इन ओलंपिक्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये स्टेटमेंट सही है। दे विल एस्टैब्लिश अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स खेलो इंडिया स्कीम। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। सो आंसर इसका क्या होगा? सी। ठीक है, तो अभी बोला गया है गलवान रिवर के बारे में, जो गलवान वैली में जो क्लास हुआ था इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। यू कैन सी द क्वेश्चन हियर। द गलवान रिवर फ्लोज फ्रॉम लद्दाख इनटू द अस्काई चीन रीजन। उसके बाद पूछा गया है इट फ्लोज वेस्टर्न वर्ड टू जॉइन द सियोक रिवर, जो एक सतलेज रिवर का मेन ट्रिब्यूटरी है। तो मुझे अभी बोलो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? So here the correct answer you can see D. Both the statements are wrong because ये सतलेज का नहीं, सियोक ये जो ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे देखो बताया गया है ये इंडस का है। इस पिक्चर से आप लोग देख सकते हो। The Galwan River flows from the disputed Askai Chin region to Ladakh of India. It originates from Samlungjing on the eastern side of the Karakoram range, flows west to join the Siok River, जो इंडस का एक ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? डी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स व्हिच आर इन टर्न मेड अप प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्लाज्मा हैज ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड आर लेस डेंस। क्वेश्चन दिया गया है शायद कौन सा इसमें से सही है शायद। ओके, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? टेल मी। फिर से मैं क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन,
तो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर इज ए, स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग योर। There are 4 natural states of matter, namely solid, liquid, glass and plasma. Fifth state is your Bose-Einstein condensed. Plasma is a state of matter, okay, which has no fixed shape or volume. तो इसीलिए आप लोगों का जो दूसरा स्टेटमेंट है, this statement was wrong. तो guys, these are all the important questions what I discussed with you from the topic of third week June current affairs. I hope that you enjoyed the video, and we guys are again going to come with beautiful videos with some more beautiful information. So stay connected, subscribe our channel,